मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, हमारे ज्येष्ठ सांसद राजेंद्र जी, विशेष रूप से आज से कार्यक्रम में सम्मिलित हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सुजुकी सुतु जी, हमारे एनएचए के मेंबर मनोज कुमार जी, हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलूंगा क्योंकि एम्बेसडर साहब उसको समझेंगे और बाद में अपनी बात हिंदी में रखूंगा। First of all, it is a great event in the history of Indian road infrastructure that today we are starting the first intelligent transportation system. I always telling the people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. As far as the road sector is concerned, there are a lot of positive points. But one of the point which is really hurting to my mind, that is every year in India, we have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. We need to improve our road engineering. The engineering is very, very important. The education for the people is equally important. Emergency after accident, giving appropriate service to the people is very, very important. And the most important thing is the education by which we can train the people. Regarding road engineering, we are already taking a lot of measures. And first of all, we have decided to make a green express highway. His Excellency, it is really important for us. We are making 26 green express highway. And by cooperation of Japan government and JICA, with your finance, your help, we are successfully implementing the intelligent transport system in Ghaziabad. It is the constituency of our honorable, my colleague, Mr. Dr. V.K. Singh. And our idea is to make this system into the NHI headquarters, by which we are going to control all NHI in the country, where we can take advantage of the technology by which we will get the toll, but we will control the rules and regulations related with the road safety. So this is really a great thing for me, that presently we are now planning to make 26 green express highway. Already some of the express highway we are already working, and it is to be a pleasure for me. As far as Delhi is concerned, Delhi to Meerut is one of the express highway which is very important. All over here, Delhi peripheral ring road is there. And now presently Delhi Meerut is going up to the Dehradun. So this first express highway in this area, which is going to be helpful for the people of this area. The other express highway we are going to plan from Delhi to Dehradun within 2 hours. Express highway starting from the Swaminarayan Mandir. And at the same time, we are making Delhi to Amritsar 4 hours, Delhi to Katra 6 hours, Delhi to Srinagar 8 hours, and Delhi to Dehradun 2 hours, Delhi to Haridwar 2 hours, and Delhi to Mumbai 12 hours. So this is going to change the total scenario of road infrastructure in the country. So really, I am giving my special thanks to you and your government for giving cooperation from JICA and giving new technology, new vision for all of us, which can be important for this is the beginning of new era of smart and green highways in India. And because of your guidance and help and our financial assistance, it is only to be a great achievement for all of us. I am giving your JICA people for giving help to us. I am very much thankful to you, giving my thanks to you from Government of India. मैं अब एक इम्पॉर्टेंट बात पहली बार घोषणा कर रहा हूं। वो घोषणा ये है कि हमारे डॉक्टर वीके सिंह साहब ने मुझे आग्रह किया था, और वो लगातार उनके फॉलोअप के कारण आज उनकी एक बहुत बड़ी मांग पूरी हो। वो करते समय जैसे दिल्ली से हमने जी आप लखनऊ भी जोड़ने का हमने प्लान किया है,
और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहाँ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कानपुर से लखनऊ 40 मिनट में पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये जो मेरठ जाता है रोड, ये सीधा रोड जो है इसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बाईपास बनाएंगे शहरों में, और वो बाईपास जो होंगे वो एक्सिस कंट्रोल होंगे और उन बाईपास के द्वारा दिल्ली से लखनऊ हम केवल 3.5 घंटे में जा सकेंगे, ऐसा काम करेंगे। और ये डॉक्टर वीके सिंह साहब का सपना था और वो आज इसकी घोषणा मैं गाजियाबाद में उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और उसमें से इसी रोड का जनरल वीके सिंह साहब जी के उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री केशव जी के उपस्थिति में हम लोग अभी कानपुर से लखनऊ इसका शिलान्यास 10-12 दिन के अंदर हम कर जा रहे हैं और इसके आगे का भी काम हम करेंगे, जिससे गाजियाबाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जो वीके सिंह साहब के ऊपर जो प्रेम व्यक्त किया है, उसी प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने आपके प्रति जिम्मेदारी थी पूरी होगी। हाईवे बनाने से केवल नहीं होगा, तो गाजियाबाद में और ये जो पेरिफेरल रोड है इसको लेकर अगले सप्ताह में मेरे घर पर एक मीटिंग है। दिल्ली ये अभी देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है और इसलिए दिल्ली के कंटेनर डेपो उसके गोडाउन्स, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट्स, जिसके दिल्ली में कंजेशन होता है, तो ये पूरा मार्केट हमारी लॉजिस्टिक कंपनी जो है जो करीब 2 लाख करोड़ के काम कर रही है, तो हमने एक योजना तैयार की है। मनोज कुमार उस कंपनी के अध्यक्ष हैं। पेरिफेरल रोड पर हम लैंड करेंगे और जहां रेलवे की कनेक्टिविटी होगी वहां मल्टी मॉडल हब बनाएंगे। और जनरल साहब, आपके एरिया में जो कंजेस्टेड इंडस्ट्रीज है, गोडाउन्स है, इनको सबको उधर लेकर जाएंगे और यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, पोल्यूशन फ्री सिटी बनेगी। और निश्चित से ये पेरिफेरल रोड जाने के कारण दिल्ली का कंजेशन कम होगा, गाजियाबाद का कंजेशन कम होगा और निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, नए नए उद्योग आएंगे, नए रोजगार निर्माण होंगे और यहाँ का पोल्यूशन भी कम होगा। तो उसके लिए भी अगले सप्ताह में मीटिंग है। तो आपके नेतृत्व में गाजियाबाद का चौफेर विकास हो रहा है। आज और एक अच्छी बात हुई कि जो यहाँ आरओबी बन रहा है, ये पहली बार देश का इतना वजनी लोहे का स्ट्रक्चर आया। इसके पहले हमारे नागपुर मेट्रो में यूज हुआ था, उससे भी बड़ा यहाँ यूज हुआ रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट आज देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप से उसका भी काम मार्च तक पूरा होने वाला है। उसके लिए अमेरिका से स्पेशल मशीनरी लाई जा रही है इसको पुशअप करने के लिए, और ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो हमारी टेक्निकल टीम है, इनको मैंने 2 सूचना दी है। ये जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरी अंदर में, आप सबको शांति से, पत्रकारों को विशेष रूप से ये टेक्निकली समझाएंगे और जो ब्रिज के बारे में भी है वो कैसे बना है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये अपने आप में अनूठा है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो इसकी भी नॉलेज, जानकारियाँ आपको वो हमारे कार्यक्रम के बाद देंगे। और मैं अभी मेरठ में भाषण करने वाला हूं, तो बाकी बातों की घोषणा वहां करूंगा। केवल गाजियाबाद से रिलेटेड पहली बार एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, वो मैंने बताई। मैं फिर से एक बार वीके सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत दिनों से जिसका पीछा किया था, मैं उनको भी बधाई देता हूं, यहाँ की जनता को भी बधाई देता हूं। और अब मैं मेरठ में जब जाऊंगा तो उचित रूप से बाकी बातों की चर्चा वहां हम करेंगे। एक 2-3 सवाल पत्रकारों के होंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरी आपसे अनुरोध है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये ब्रिज का और ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है, इसके परिणाम कैसे होंगे, इसका फायदा कैसे होगा, यहीं से कंट्रोल कैसे होगा, एक्सीडेंट कैसे रुकेंगे, ट्रैफिक कैसे स्मार्ट होगा, ये वर्ल्ड में सब जगह है। तो पहली बार देश में आएगा और हर रोड पे अब ऐसी बनेगी। और हम NHAI में तो इसका एक पूरा सेंटर इंडिया का बनाने जा रहे हैं। तो एक जगह से देश के सभी रोड का एक स्क्रीन पर पूरा कंट्रोलिंग होगा। छोटी सी भी बात गड़बड़ हुई कि कोई चोरी करके भाग गया, उसका नंबर होगा,
तो विद इन 10 मिनट पता चल जाएगा कि कौन से लाइन पे गाड़ी कहाँ भागी है, तुरंत पता चलेगा। यानी किसी भी लिए यह टेक्नोलॉजी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रक जाएगा तो वो पता चलेगा, रुका तो वो पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी में जो बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ है, जो जापान की और हमारी जायका के सहयोग से हुआ है, उसका भी ये प्रोजेक्ट मुझे देखने के लिए मिला है। उसके बारे में मैं फिर से एक बार आपको दोहराऊंगा कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ स्मार्ट एंड ग्रीन हाईवेज इन इंडिया। मैंने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कहा था योगी जी की उपस्थिति में कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिकन स्टैंडर्ड के बनेंगे और यूरोपियन स्टैंडर्ड के बनेंगे। तो मुझे लगता है कि उसी की एक शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में ये बना हुआ है। तो आगे चलकर हम इस सर्विस, स्टेट पीडब्ल्यूडी का भी इंचार्ज केशव जी है, आपको जरूरत होगी तो हम ये पूरी टेक्नोलॉजी आपको फ्री ऑफ चार्ज आपके रोड के लिए भी उपलब्ध करा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे माननीय मंत्री जी के अर्थपूर्ण शब्दों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मीडिया के लिए फ्लोर ओपन करना चाहेंगे। हमारे पत्रकार मित्रों से निवेदन है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ उठा के पूछ सकते हैं। सर पहुंच रहा है माइक अब तक? हेलो, एक मिनट। हेलो, आवाज सर, आप पूछिए सर। सर सवाल ये है, सर एक ही रिक्वेस्ट है, केवल रोड सेक्टर के प्रश्न पूछिए जी, उसी पे पूछ रहा हूं। राजनीतिक प्रश्नों को टाल दीजिए, बाकी हम टाइम पड़ा आपको लिखने के लिए। आज टेक्निकल बात है, रोड की बात है, उतना ही करिए। सर रोड के विषय में पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से चालान तो यहाँ से आराम से हो जाएंगे, क्या जैसे हादसे होते हैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है इस जगह? देखियो, इसमें ऐसा है, अभी स्पीड के बारे में भी नए नियम बनाने हमारी विचाराधीन है। अब ये जो स्पीड है इसमें से 120 किलोमीटर तक तो ठीक है, पर कभी उससे ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसकी भी चिंता है। तो इसके बारे में कैमरा नोट करेगा और अगर ऐसा होगा तो तुरंत वो रिपोर्ट हम स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस को करेंगे, उसके फोटो के साथ दर्ज होगी। अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों का वायोलेशन करता है, रोड पे गाड़ी कर देता है, एक्सीडेंट करता है, रॉन्ग वे जाता है, तो निश्चित रूप से वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा ये है कि हम कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी समस्या है। और जिससे कितने लोग मर, 3% जीडीपी का नुकसान हो रहा है, 1,50,000 लोगों की डेथ हो रही है। 18 से 42 वयोगट में 64% के लोग जो है जो मरने वाले, यंग लड़के लड़कियां मर रहे हैं एक्सीडेंट में। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह मेरा पैर टूटा था, मैंने भुगत चुका हूं मैं। और इसलिए ये ना हो, इसलिए हमने 3 बातें की है। एक, रोड इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट्स, तो उसके लिए ये सब हमको इसका उपयोग होगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। दूसरी बात एजुकेशन, जिसमें लोगों को ये जो रोड सेफ्टी के बारे में समझाना, बच्चों को समझाना, युवाओं को समझाना, कार्यक्रम करना, ये कार्यक्रम। तीसरा इमरजेंसी एक्सीडेंट होने के बाद तो हॉस्पिटल में ले जाना, उसको ट्रीटमेंट देना। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा, तब तक हम उसके लिए आगे जा रहे हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इमरजेंसी, ये तीन ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें चौथा ये एनफोर्समेंट है। अब अगर कानून के बारे में लोग पालन नहीं करेंगे तो कानून को एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। बने तक लोग कोऑपरेट करेंगे तो उसका समय नहीं आया, तो उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है, उनको भेजेंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे। सर एक सवाल ये है, अभी जैसा बताया कि 5 सालों में यूपी के अंदर 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। आने वाले 5 सालों की क्या प्लानिंग है और पूरे देश के अंदर टारगेट की तरफ से रखा गया है, क्योंकि आपको जाना जाता है जो टारगेट आप रखते हैं उसको अचीव भी करते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें क्रेडिट केवल मुझे या वीके सिंह साहब को नहीं है, हमारे NHAI मनोज कुमार जी, बाकी इंजीनियर्स हैं, इन लोगों ने सबने रात दिन टीम के रूप में काम किया। अब हमने 3 वर्ल्ड बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मुंबई वडोदरा
हमारा एक्सप्रेस हाईवे पर हमने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर वडोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर दूसरा हमने जो बनाया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। दूसरा बनाया सोलापुर बीजापुर, जहां हमने करीब 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड 22 घंटे में बनाया। और इसलिए तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक समय हम 3 किलोमीटर पर आए थे, अब हम 38 किलोमीटर कोविड के बावजूद हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। अब उसके साथ साथ यूपी के बारे में, परसों ही मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, योगी जी के, तो मैंने हिसाब किया तो करीब हमने अभी तक 1.5 लाख 2.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे करते हुए लाए हैं। करीब 1.5 लाख के काम, 2 लाख के काम अभी चल रहे हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर करके रखे हैं। तो मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ तो हमने किया ही है काम, ये 4 लाख तक जाएगा। पर 3 लाख के बाद अगर योगी जी और केशव जी का डबल इंजन यूपी को लगने ही वाला है, तो हम ये आने वाले समय में 5 लाख करोड़ के नए काम यूपी में करेंगे। अभी हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी बता रहे थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 करोड़ ना 20,000 काम केवल मेरठ के आजू बाजू में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और उत्तर प्रदेश में रोड के कारण इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के कारण इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के कारण रोजगार तैयार होगा और उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर होगी और समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होगा। सर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सी? सर पहला ऐसा है कि कानपुर टू लखनऊ ये पूरी नई अलाइनमेंट है, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, जिसका भूमि पूजन 10-12 दिन के अंदर आदरणीय योगी जी, केशव जी, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, हम लोग जाकर करेंगे। एक दूसरी बात ऐसी है कि कानपुर के बाद फिर गाजियाबाद तक है, उसका अध्ययन चालू है। इसमें बड़े शहर आते हैं, वो कंजस्टेड है और हाईवे हमारा शहर के बीच में से जा रहा है। तो अब इसमें से कुछ हाईवे के जो शहर है उसको हम बाहर से करने का सोच रहे हैं, तो इसका अभी काम शुरू करेंगे और उसके बाद ये जो है इसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कुछ जगह एलिवेटेड कैसा बना सकते हैं ताकि ऊपर, जैसे आपके हमने एलिवेटर बना दिया, तो वो बनाकर इसको कैसा कर सकते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना कर जाएगा। तो ये सब का अध्ययन करके ये हो जाएगा और ये भी इसकी कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ टू कानपुर पूरा हो गया, दिल्ली टू गाजियाबाद पूरा हो गया, अब गाजियाबाद को कानपुर तक का अध्ययन करके और फिर इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर एक सवाल इधर लास्ट सर एक्सप्रेस वेज की कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना से कनेक्ट नहीं है या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल से कनेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ हम ग्रीन एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं। सवाल ये कि सर ग्रीन फ्यूल्स कब मिलेगा, सीएनजी और हमारी इलेक्ट्रिक जो चार्ज स्टेशन है वो हमारी कब तक प्लानिंग है कि हम वहाँ पर इन हाईवेज पे आ सके, एक्सप्रेस वेज पे? देखिए अभी फ्यूचर की जो फ्यूल है, आप यूट्यूब पर सुनते होंगे, मैं 2004 से यही बात बोलते रहता हूँ कि सीएनजी इथेनॉल, ये गन्ना उत्पादक किसान है, इनका इथेनॉल, और हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब, परसों हमारे एम्बेसडर साहब और मैं नोएडा में एक कार्यक्रम में, सुजुकी और टोयोटो के कार्यक्रम में साथ में थे। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल, ये ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है। तो कल मैंने फाइल पर साइन कर दिया फ्लेक्स इंजन के एडवाइजरी पर। अब ये 6 महीने की मुद्दत दी है कि ये पेट्रोल की स्कूटर जो बजाज की और टीवीएस की है, इन्होंने फ्लेक्स इंजन पे बनाई है, वो मैंने लॉन्च कर दी। फिर ऑटो रिक्शा पूरी इथेनॉल पे आएगी 100%, 2 व्हीलर आएगी और 4 व्हीलर भी पूरा इसी पे आएगा। तो अब पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, 100% बायो इथेनॉल जाएगा। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपये, इथेनॉल का 62 रुपये, तो आपका फायदा हो जाएगा और ग्रीन फ्यूल होने के कारण प्रदूषण बच जाएगा। फिर बायो सीएनजी है, ये वीके सिंह साहब मेरे घर पर आए थे, मेरा खुद का ट्रैक्टर मैंने लॉन्च किया था, जो पॉपुलरली आपके यहाँ परली होती है, वो जलाकर पूरा दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी तैयार होता है।
तो हमने ये प्लांट भी डाला, मेरा ट्रैक्टर भी कन्वर्ट किया, यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है, सीएनजी पंप की, एलएनजी पंप की, तो ये भी कन्वर्ट होगा, उससे भी प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात जो है इलेक्ट्रिक की, अब लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आ गई है। और ये तो मैंने केशव जी को भी अनुरोध करूंगा कि डीजल की बस जाने के लिए 115 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है, जो बेस्ट करके मुंबई में है। और इथेनॉल की बस जो नागपुर में हमने शुरू की थी 100%, उसको 79 रुपीज़ पर किलोमीटर खर्चा आता है। और इलेक्ट्रिक की एयर कंडीशन बस, लग्जरी बस, अब वॉल्वो जैसी बनी है, वो बस जाती है 50 रुपये पर किलोमीटर। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और टिकट रेट 30% कम कर दो, ये प्रस्ताव मैंने उनको दिया है। वो ट्रांसपोर्ट के तो ये भी हो जाएगा, तो कठिन नहीं है, और प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इलेक्ट्रिक एक फ्यूल है। और चौथी बात जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, और मेरी सोच ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन सस्ता हो जाए। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल फॉर द कंट्री। और अभी मैं जनवरी 1 वीक में टोयोटो कंपनी ने मेरे लिए, मेरे आग्रह पर एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की कार लाई है, और ये फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के सेंटर से ग्रीन हाइड्रोजन को तब अनुमति दे दिए, वो वहाँ तैयार करेंगे। और मैं अप्रैल के पहले सप्ताह में मैं ग्रीन हाइड्रोजन की कार लेकर घूमना शुरू करूँगा। वो इसी 140-160 में आती है। इसमें वीके सिंह साहब को भी बुलाऊंगा, आप भी आइए, आपको भी चक्कर दिलाऊंगा एक, तो आपको बताएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रही। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की विशेषता ये है कि जो गंदा पानी है सीवेज का, ये पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करना है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि गंदे पानी का, मैं नागपुर में हमने टॉयलेट का पानी बेच दिया महाराष्ट्र सरकार को, महानगर पालिका की ओर से, तो हमको 325 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिल रही है। अब उसी पानी को सोलर रूफटॉप बनाएंगे तो बिजली सस्ती, पानी फुकट। और इलेक्ट्रोलाइजर अब इंडिया में बन रहे हैं। बेंगलोर में हमारे जो स्टार्टअप है वो 90% प्रोडक्शन अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 10 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोलाइजर लग जाएगा, यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा, उसके पंप आएंगे, एलएनजी, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग एक जगह होगा। ऐसे 350 सेंटर हम बना रहे हैं एनएचआई में, और यही फ्यूचर है, और इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। कभी आराम से आइए, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, मैं आपको फिर उसका डिटेल बताऊंगा। सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।